Hello, children. Good afternoon. Welcome to English Kingdom. I'm your teacher Deepak Juneja, and today we are going to begin the first lesson of your book Snapshots. Name of the lesson you can see on the screen, that is The Summer of the Beautiful White Horse. If we talk about the title of the lesson, The Summer of the Beautiful White Horse, how is it made? Because this is the story of the summer season, that's why it is written the summer, and it is related to beautiful white horse. That's why these two things are combined together and to give one title that becomes the summer of the beautiful white horse. White horse keeps a lot of importance in this story because the story revolves around that white horse also, and it is a symbol of richness and luxuriousness. White horse जो होता है वो richness कहते हैं अमीरी, और लग्जूरियसनेस का मतलब होता है आराम का भी प्रतीक होता है वाइट हॉर्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. दिस इज़ द स्टोरी सेट इन अ कंट्री. द नेम ऑफ द कंट्री इज़ आर्मेनिया. ये जो कहानी है, ये पूरी कहानी की जो बैकग्राउंड है एक देश की है जिसका नाम है आर्मेनिया. आर्मेनिया प्रीवियसली it was the part of Soviet Russia, but after the Russia was divided, फिर ये एक separate, एक independent nation बन गया आर्मेनिया. और this particular story has been written or composed by William Saroyan. William Saroyan ने इस story को लिखा है, and this is the story of a particular tribe. एक tribe की story है. The name of that tribe is Garo-Galenian, and this Garo-Galenian tribe belonged to this country Armenia. I'm going to show you certain facts before we begin the lesson. So let's go back to those facts. The Summer of the Beautiful White Horse. It's a short story by William Saroyan. You can see his picture now flashing or popping on the screen. He was an Armenian American novelist, playwright and short story writer. He was awarded the Pulitzer Prize for Drama in 1940, and in 1943 he won the Academy Award for Best Story for the film The Human Comedy. Some more information is given there, but this information is sufficient for us that he belonged to he belonged to actually Armenia, and later on he was migrated to America. That's why he became Armenian American novelist. And this short story has been taken from his long collection, and the name of the collection is My Name is Aram. उसने एक बहुत बड़ा उन्होंने कलेक्शन लिखा है जिनका नाम है माई नेम इज़ आराम. उसमें से एक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू बॉयज़, आराम एंड मुराद, हु बिलोंग टू अ वेरी पुअर आर्मेनियन ट्राइब, जो कि बहुत गरीब आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं. दिस आर्मेनियन ट्राइब इज़ गैरोगलेनियन ट्राइब, जिसका नाम इसमें मेंशन किया गया है. This name of the country Armenia, look at this. This is a country in Asia. It's a nation and former Soviet Republic, as I have already told you that previously it was the part of Greater Russia, but now it has become a separate country. And अभी ये आर्मेनिया जो है अभी करंटली अभी न्यूज़ में है. क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज देर इज़ ए फाइट और देर इज़ ए वॉर गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, नेम विच यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मैप इन बोल्ड लेटर्स. आर्मेनिया नाम है और एक का नाम है अज़रबैजान. आर्मेनिया और अज़रबैजान, इन दोनों में अभी वॉर चल रहा है. कभी कभी बीच में इंटरमिटेंट सीज़ फायर के न्यूज़ आती रहती है, लेकिन वॉर अभी चल रहा है. उसके बाद में आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ. ये तो आर्मेनिया और अज़रबैजान की एक बार लोकेशन देख लेते हैं हम. ये आर्मेनिया है और ये अज़रबैजान है, जहाँ पर अभी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ़ाइट भी चल रही है. पूरा एक पैनोरमिक ग्लोबल व्यू देखें तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया होगा कि ये दोनों कंट्रीज़ कहाँ पर हैं. जैसे ये अज़रबैजान हम देख सकते हैं. नाउ दिस इज़ शोइंग द मैप. दिस इज़ इंडिया, एंड यू कैन सी दैट अज़रबैजान इज़ हियर, and somewhere here should be Armenia also, Armenia and Azerbaijan. So let's go back to the text में चलते हैं. इसी आर्मेनिया की कहानी है. So one day, एक्चुअली यहाँ पर कोमा होना चाहिए था अच्छी तरीके से समझने के लिए. One day back there in the good old days. इस पर्टिकुलर स्टोरी में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स बहुत कम लगाए गए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने में हल्की सी दिक्कत हो सकती है. अदरवाइज दिस इज़ अ गुड स्टोरी एंड वेरी सिंपल स्टोरी टू अंडरस्टैंड. सो वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by every day, who knew him except me, came to my house
at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. So this was the story of good old days when he was 9. And the writer is referring those days good old days. It means to say, he wants to say something else, क्योंकि वो बहुत पुअर थे लेकिन लाइफ में काफ़ी सेटिस्फेक्शन था. सी व्हाट ही सेज, द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. पूरी दुनिया जो है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों से भरी हुई थी, हर प्रकार की मैग्निफिसेंट चीज़ों से भरी हुई थी. मीन्स लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी लेकिन उनकी लाइफ में नहीं थी. लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्ट्रियस ड्रीम फॉर देम. लेकिन उसके अकॉर्डिंग लाइफ अभी भी उनके लिए डिलाइटफुल और मिस्ट्रियस ड्रीम था, यानी उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो उनको गुड ओल्ड डेज कहता है. वाई डज ही से, बिकॉज एट दैट टाइम उनकी जो ये ट्राइब थी दैट वर्कड ऑन ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर काम करती थी, इसलिए उसने गुड ओल्ड डेज की बात की है. His cousin, what was the name of his cousin? Murad. So this is a story being written by Aram. Aram द्वारा ये कहानी लिखी जा रही है और Aram अपनी कहानी बता रहा है. तो उनके कजिन का नाम था मुराद, who was considered crazy by everybody, जिसको सब लोग क्रेजी समझते थे. who knew him, जो उसको जानते थे, except me. Aram के अलावा बाकी सब लोग उसको क्रेजी समझते थे. He came to the house of Murad he came to the house of Aram at 4 in the morning. ये जो कज़िन था उसका, कज़िन जिसका नाम मुराद था, वो करीबन सुबह 4 बजे उनके घर पर आया. एंड ही वॉक हिम अप, और उसे जगाया. हाउ डिड ही वॉक हिम अप, हाउ डिड ही वेक हिम अप? ही वॉक हिम अप बाय टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम, उसके कमरे की विंडो के ऊपर टैप करके. एरम ही सेड, तब यहाँ देखिए यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स पेड नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधानी से पढ़ने की जरूरत है. उसने एरम आवाज़ देके बुलाया. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा. वाई कुडंट ही बिलीव व्हाट ही सा? क्यों नहीं विश्वास हुआ उसको? इट वॉजंट मॉर्निंग येट, कंप्लीट मॉर्निंग अभी नहीं थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग. सो इट वॉज कंप्लीट, इट वॉज नॉट मॉर्निंग, इट वॉज अ टाइम ऑफ 4 o'clock, लेकिन पूरी तरह से सुबह हुई नहीं थी. Although it was the time of daybreak and the light was easily available there because it was the time of summer, और समर में आप जानते ही हैं कि रोशनी बहुत जल्दी आ जाती है सुबह सुबह के समय पर. और he could understand और he could see कि he was not dreaming, और जो कुछ भी वो देख रहा था वो एक्चुअल में उसके सामने रियल उसकी आंखों में था, सामने था. My cousin, what did he see now? क्या देखा उन्होंने? He saw that his cousin, what was the name of his cousin? Murad. What was he doing? He was sitting on a beautiful white horse. So this was a dream come true for him. ये उसके लिए, एरम के लिए बिल्कुल एक सपने जैसा था कि उसने मुराद को एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठे देखा. I stuck my head out of the window. Yes, I took my head out of the window and rubbed my eyes. Why did he rub his eyes? Because he could not believe on what he saw. That's why to make himself believe on that thing, he rubbed his eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. This was stated or said by Murad. Murad ने कहा, this is true. You are not dreaming. I'm sitting on a white horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. If you also want to ride, come out and quickly. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. What does the writer want to say? Aram wants to say that he knew very well that Murad was a lively person. Lively person मतलब जिंदा दिल व्यक्ति जो काफ़ी एक्शन वाला होता है और चीज़ों को एंजॉय करना चाहता है. But this was more than even I could believe. लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था. He wanted to say कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था कि वो सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था. अब ये why was he not able to believe, वो विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा था, उसका रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है. तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि why could Aram not believe when he saw Murad sitting on a white horse. यानी एरम को विश्वास क्यों नहीं हुआ जब उसने मुराद को वाइट हॉर्स के ऊपर बैठे हुए देखा. तो क्यों नहीं हुआ, उसके कई 2 कारण थे. तो ही हैज़ गिवन 2 reasons. What were 2 reasons? In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longing to ride. पहली बात तो ये थी कि उसके जो अर्लीस्ट मेमोरीज थी, जो उसकी लेटेस्ट मेमोरीज थी, जो उसकी हॉर्सेस की मेमोरी थी, मीन्स ही वाज फॉन्ड ऑफ
हॉर्स राइडिंग, उन्हें हॉर्स राइडिंग का एरम को बहुत शौक था, तो उसे हमेशा उसी के सपने आते थे कि किसी दिन वो किसी हॉर्स के ऊपर राइडिंग करेगा. सो ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हिज ड्रीम हैड कम ट्रू, कि उसका सपना इतनी जल्दी सच हो गया था. एंड हिज कजिन वॉज सिटिंग ऑन अ हॉर्स, एक वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था उसका जो कजिन था, एंड ही आल्सो वुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू राइड ऑन द हॉर्स. द सेकेंड रीज़न वॉज दैट दे वर वेरी पुअर. एक दूसरा रीज़न ये था कि वो बहुत गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सेड. और इसके कारण तो उसे ज़्यादा विश्वास नहीं हो पा रहा था, बिकॉज पुअर, और ये यहाँ पर जो वाइट हॉर्स था दैट वाज द सिंबल ऑफ रिचनेस, तो रिचनेस का सिंबल था, तो वो इतने पुअर थे, तो इसका मतलब वो कहाँ से ला सकते थे घोड़े को. दैट्स वाई ही कुड नॉट बिलीव. तो यहाँ से दो रीज़न निकल के आए. द फर्स्ट रीज़न वॉज दैट ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ riding on a horse and he was dreaming for the same. He had a dream of riding on a white horse, so he could not believe that his dream had come true so early. The first thing is that. The second thing is that they were very poor, and this white horse was the symbol of richness. It was very expensive, so he could not believe कि वो poor होने के बावजूद भी कहीं से वो घोड़ा लेकर आया था. We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. Poverty stricken कहते हैं completely surrounded by poverty. हमारी जो पूरी की पूरी ट्राइब थी वो पूरी तरह से गरीबी से घिरी हुई थी. Every branch of the Gherogalian family, ये ट्राइब का नाम है, Gherogalian फैमिली की पूरी जो ब्रांच थी वो पूरी तरह से कॉमिकल, अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी. अमेजिंग मीन्स सरप्राइजिंग, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इतनी बुरी स्थिति थी. कॉमिकल मीन्स पीपल यूज टू लाफ एट देम बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. हम इतने गरीब थे कि हमें खुद को समझ में नहीं आता था कि हमारे पेट में खाना कहाँ से आता है, यानी खाने के लिए पैसा कहाँ से आता है. मीन्स दे वर सो पुअर, वो इतने गरीब थे कि दो वक्त के खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से होता था. और हाउ कुड दे हैव अरेंज्ड, और वो कैसे अरेंज कर लेते थे, ये भी उनके लिए एक सीक्रेट था. Most important of all, though we were famous for our honesty. They were poor, but they were famous for their honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. 11 centuries means 1100 years. वो लगभग अपनी honesty के लिए famous रहे थे. And even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. यहाँ तक कि इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और किसी समय दुनिया में जब वो वेल्दिएस्ट थे, यानी सबसे अधिक पैसे वाले भी थे कभी किसी ज़माने में 1100 साल पहले, तब भी लोग उनको उनकी ऑनेस्टी के लिए जानते थे. हमें वी वर प्राउड ऑफ आवर सेल्स, वी वर वेरी ऑनेस्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. हम राइट और रॉन्ग में बिलीव भी करते थे. मीन्स दिस गैरोगेलिनियन ट्राइब वाज फुल ऑफ मोरालिटी, एथिक्स और मोरालिटी से पूरी तरह से भरे हुए थे लोग. दे वर पुअर थे, लेकिन दे वर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, दे वर वेरी ऑनेस्ट, एंड दे स्ट्रांगली बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील. हमें से कोई भी किसी भी दूसरे व्यक्ति का कभी भी एडवांटेज नहीं लिया करते थे. कॉन्सिक्वेंटली कहते हैं एज ए रिजल्ट, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, the horse was looking very attractive, even though I could smell it, its smell was very beautiful, it was so lovely. Even though I could hear it breathing, means its breathing also was attracting me, it was so exciting. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. So long this particular sentence is that the horse was attracting him very much, but he could not believe horse and his cousin Murad together. Even any of the member of his family also, if they had been awakened, अगर वो जगे हुए होते तो वो भी believe नहीं कर पाते, because they were very poor, so they couldn't have bought the horse. इसलिए घोड़ा खरीदना तो उनके बस की बात थी ही नहीं. और when it was not purchased, it was not bought, तो only one thing is there, it must have been stolen. इसका मतलब इसे चुराया गया है. And he refused to believe.
और उसको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसने चुराया होगा, बिकॉज देयर ट्राइब इज नोन फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं. नो मेंबर ऑफ द घेरघोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. पायस कहते हैं होली को, पवित्र. स्टिलनेस मीन्स शांति. ह्यूमर मीन्स, ह्यूमर का मतलब यहाँ हंसी मजाक से नहीं है, ह्यूमर का मतलब हैप्पीनेस. तो दोनों के चेहरे पर काफ़ी शांति थी और काफ़ी हैप्पीनेस दिखाई दे रही थी, दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी. स्टिलनेस का मतलब जैसे कहते हैं कि काफ़ी दिमाग या मन शांत हो जाता है कोई चीज़ मिलने के बाद में, वो स्टिलनेस की बात हो रही है. तो दैट कुड ईजीली बी सीन ऑन देयर फेसेस एंड ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट. But at the other side, he was frightened also. He was frightened. Why was he frightened? Because this horse was giving him a particular message. इस horse से उसको एक message मिल रहा था कि शायद मुराद ने चोरी की है. Then he asked the question, Murad, I said, where did you steal this horse? ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. Means Murad did not give the answer for that question. It means to say he must have stolen that horse. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. यानी वो तो उसे invite करने आया था कि चलना है तो चलो वरना मत चलो. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. It happens when we are tempted by something. जब हम किसी चीज़ की तरफ अपने आप को ललचा लेते हैं, तब हमारी तरफ दो चीज़ें, जैसे आप सपोज यू आर गोइंग ऑन रोड, आप सड़क पर जा रहे हैं, यू फाइंड ए 500 रुपीज़ नोट, आपको 500 रुपये का नोट मिलता है. तो आप चाहते हैं कि वो 500 रुपये का नोट आप ना उठाएं, बिकॉज दैट मनी बिलोंग्स टू समवन एल्स. लेकिन उसी समय से अनदर पर्सन इज विद इन यू विच गिव्स यू हु गिव्स यू द मैसेज कि नहीं नहीं ये तुमने कहीं से चुराए थोड़ी, नहीं तो तुम्हें रास्ते में पड़े हुए मिले, तो रास्ते में पड़े हुए मिल गए तो तुम्हारे हैं. इन द सेम वे अ कॉन्फ्लिक्ट वाज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ एरम आल्सो. नाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? मुराद हैड डन द क्राइम, मुराद ने तो क्राइम कर दिया था, ही हैड स्टोलन द हॉर्स. लेकिन एरम के दिमाग में अब क्या चल रहा है? टेम्पटेशन वर्सेस एथिक्स. अब आप देखिएगा कि टेम्पटेशन जीत जाएगा और एथिक्स हार जाएंगे. कैसे वो अपने आप को दिमाग में समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी. इज ट्राइंग टू कंपेयर दीज टू थिंग्स. कि स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइड, राइडिंग के लिए किसी घोड़े को चुराना वैसा ही नहीं है जैसा पैसा चुराना. अब उसने फिर आगे इसका क्या कारण दिया है कि हमें ये मालूम होना चाहिए. स्टीलिंग इज स्टीलिंग. स्टीलिंग तो स्टीलिंग होती है, बी इट फॉर मनी, चाहे पैसे के लिए हो, बी इट फॉर प्लेजर, चाहे खुशी के लिए हो, लेकिन स्टीलिंग स्टीलिंग है. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, बट एरम इज ट्राइंग टू गाइड हिज माइंड कि ये स्टीलिंग नहीं है. इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग. आप किसी चीज़ के पीछे पागल हैं और आपने कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए यूज़ की तो ये स्टीलिंग थोड़े. इट वुडंट बिकम स्टीलिंग. ये स्टीलिंग तब तक नहीं कहलाएगी अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम उस घोड़े को बाजार में बेच ना दें. तो ये तो ठीक वही बात हुई कि हमने किसी पड़ोसी का मोबाइल फ़ोन ले लिया, उसको चलाने के लिए 3-4 दिन रखा और हमने कहा हमने चोरी नहीं की, हमने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन को बाहर बेचा थोड़ी. सो स्टीलिंग इज स्टीलिंग. एक्चुअली द टेम्पटेशन इज एट राइज. इस समय टेम्पटेशन राइज पर है. टेम्पटेशन का मतलब लालच इस समय टॉप पर है, इसलिए वो माइंड को इस तरह से गाइड कर रहा है. माइंड अपने लॉजिक्स खुद ढूंढ रहा है. इसका मतलब यह है कि ही इज बीइंग टेम्प्टेड. एरम इज आल्सो बीइंग टेम्प्टेड टुवर्ड्स मुराद व्हाइल ही नोज वेरी वेल दैट मुराद हैज स्टोलन द हॉर्स. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. ठीक है, मैं कपड़े पहन कर आता हूँ. इट मीन्स टू से ही हैज मेड अप हिज माइंड टू राइड ऑन द वाइट हॉर्स एंड दिस व्हाट टू से दिस एथिक्स जो थे, मोरालिटी है, has been defeated. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. Leaped into my clothes का मतलब I wore my clothes hastily. मैंने अब जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने. I jumped down to the yard from the window. विंडो से कूद कर बाहर आया and leaped up upon the horse. घोड़े के ऊपर उछल कर बैठ गया behind my cousin Murad. That year we lived at the edge of town. उस समय हम लोग
जो टाउन था उस टाउन के किनारे पर रहते थे, यानी एक्सटीरियर पर रहा करते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, दिस वाज द नेम ऑफ द प्लेस। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, कंट्री हियर रेफर करता है विलेज को, हमारे घर के पीछे विलेज था, विनियर्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी, कंट्री रोड्स थी, ये सब उनका घर इन सब चीज़ों से घिरा हुआ था। विनियर्ड्स और ऑर्चर्ड्स ये आपके गार्डन्स होते हैं, अंगूर के गार्डन्स, और उनके लिए यूज़ किया जाता है। इरिगेशन डिचेस यानी जो सिंचाई के लिए जो नालियाँ बनी होती हैं पानी देने के लिए, वाटरिंग के लिए, और कंट्री रोड्स थी। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. Trot means run or walk with heavy steps. The air was new and lovely to breathe. Air was not new, but their experience was new. That's why they felt that air was new. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. Roar का मतलब दहाड़ने लगा. इसका मतलब the writer is making fun. Aram is making fun of Murad. Murad thought that he was singing, but actually for me he was not singing. He was roaring. He was crying like anything. Every family has a crazy streak in it somewhere. Streak कहते हैं difference. हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ पागलपन का एक पुट जरूर पाया जाता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और हमारी ट्राइब का जो क्रेजी स्ट्रीक था, क्रेजी डिफरेंस था, उसका नेचुरल डिसेंडेंट था ये मुराद। डिसेंडेंट का मतलब वंशज, यानी जिसको कहीं से ये चीज़ क्रेजी स्ट्रीक जीन्स में मिला है, वंश में मिला है, तो वो इसका मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए जिससे ये चीज़ें उसको जीन्स में मिली हैं। उनके पहले थे उनके अंकल खोसरो, वो भी इसी तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो भी क्रेजी टाइप के आदमी थे। किस तरह से क्रेजी टाइप के आदमी थे? अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन, एक तो पीछे वाले जितने भी हैं लेसन, पीछे जितने भी आपने पेजेस पढ़े हैं उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टीलिंग फॉर राइडिंग इज नॉट स्टीलिंग। What do you think about this statement? Whether you agree or disagree with that? And the third question इसमें और भी आ सकता है, what was Gargolian family famous for? ये जो Gargolian family थी, आर्मेनियन जो ट्राइब थी, ये किस चीज़ के लिए फेमस थी? एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं इस क्वेश्चन में, नरेट समथिंग अबाउट अंकल खोसरो। अंकल खोसरो जो नाम है, जिनसे मुराद को ये सब क्रेजी स्ट्रीक मिला है, यानी कुछ क्रेजीनेस उसको मिली है, वो कहाँ से मिली है? अंकल खोसरो से। अंकल खोसरो वॉज एन इनॉर्मस मैन। इनॉर्मस मैन मीन्स ह्यूज मैन, बड़ा विशाल काय बॉडी थी उनकी, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टाश इन द सैन जैंक्विन वैली। मुस्टाश मीन्स मूछ, सबसे बड़ी मूछ उस पूरी वैली के अंदर उन्हीं की थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस मीन्स फुल ऑफ एंगर, हमेशा एंगर से भरे हुए रहते थे। इन टेम्पर मीन्स शॉर्ट टेम्पर का पर्सन था। सो इरिटेबल, बहुत इरिटेट करते थे। सो इम्पेशेंट, इतने इम्पेशेंट हैं इसीलिए शॉर्ट टेम्पर है। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। इफ समबडी इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, अगर कोई उसके सामने बात कर रहा है तो ही वुड स्टॉप हिम बाय रोरिंग, वो तेज आवाज में उसको चिल्ला कर रोक देंगे। और एक ही सेंटेंस हमेशा बोलते हैं, दिस इज हिज स्टैंडर्ड सेंटेंस। एंड व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड सेंटेंस? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। हमेशा हर किसी व्यक्ति को यही बोलते हैं, कोई भी कुछ भी बोले उसको यही सेंटेंस उन्होंने बोलना है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop. That was all. वो ठीक था अगर वो किसी दूसरे से इस तरह की बातें करते, लेकिन एक बार तो उन्होंने अपने बेटे के साथ में भी इस तरह की बात की। What happened? His son Arak, he was running 8 blocks to the barber shop. वो बार्बर की शॉप पर लगभग 8 ब्लॉक दौड़ता हुआ आया, काफ़ी डिस्टेंस से दौड़ता हुआ आया अपने पिता के पास में। His father was having his mustache trimmed. वहाँ पर अपनी मुस्टास की ट्रिमिंग करा रहे थे उसके फादर यानी अंकल खोसरो। और वो बच्चा क्या बताने के लिए आया कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि पापा आवर हाउस इज ऑन फायर। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और ये आदमी खोसरो अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा और जोर से चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। खुद के घर में आग लगी है लेकिन बोल रहा है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बाबर ने कहा, सर बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। So Khosrow roared, enough, it is no harm, I say, no, pay no attention to it. So in that way he used to respond to not only to other people
but also to his own son also. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. तो मेरा जो कजिन था मुराद, उसको ये जो क्रेजीनेस है ये कहाँ से मिला है? ये अपने अंकल खुसरो से मिला है. Although Murad's biological father was Zorab, मुराद के जो बायोलॉजिकल फादर है वो तो जोराब हैं, who was practical and nothing else, वो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है. That is how it was in our tribe. The writer is describing his tribe. A man could be the father of his son's flesh. एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति का मतलब बायोलॉजिकल फादर हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसकी स्पिरिट का भी फादर हो. इट मीन्स टू से कई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे मेंबर्स से दूसरे बच्चों में आ रही हैं. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe, spirit means qualities, merits वगैरह, demerits वगैरह, had been from the beginning capricious and vagrant. capricious का मतलब होता है uncertain, यानी किसकी क्वालिटी किस में आ जाएगी कोई पता नहीं चलता, uncertainty. एंड vagrant का मतलब फ्री इन मूविंग, इधर उधर घूमती हुई किसी में भी आ सकती है, यानी किसी भी फैमिली मेंबर की कोई सी भी क्वालिटी किसी दूसरे बच्चे में देखी जा सकती है, जबकि बायोलॉजिकल फादर उनके अलग हुआ करते थे. दिस वाज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर ट्राइब विच द राइटर एरम हैज मेंशन्ड हियर. We rode and my cousin Murad Singh. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. यानी we were riding, I and my cousin Murad were singing and riding. दूसरे लोगों को तो हम लगता था कि हम अभी हमारे पुराने गांव में ही हैं जो हमारे नेबर्स थे, लेकिन एक्चुअली द सिचुएशन वाज दैट ऑन द हॉर्स वी हैड कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट. घोड़े के ऊपर हमने बहुत सारा कवर्ड मतलब बहुत सारा एरिया कवर कर लिया. We let the horse run as long as it felt like running. Means we were not stopping the horse. The horse was running, and we also were riding on its back. At last, my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." मुराद ने कहा कि अब उतर जाओ, मुझे अकेले राइडिंग करनी. Will you let me ride alone? I asked. That's up to the horse. My cousin said, "Get down." The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with horse. अब इसका भी एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है. इसका मुराद का जो अंकल खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट है वो हमेशा यही सेंटेंस बोलेगा, आई हैव ए वे विद. अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदलता जाएगा, कभी बोलेगा हॉर्स, कभी बोलेगा क्या, जो भी आगे आपको देखने को मिलेगा. इसका ये स्टैंडर्ड सेंटेंस है, आई हैव ए वे विद हॉर्स, यानी मेरी घोड़ों के साथ में एक अलग प्रकार की ट्यूनिंग है, वो मुझे आराम से घोड़े पर राइडिंग करने देते हैं. वेल आई सेड एनी वे यू हैव वे विद हॉर्स, आई हैव आल्सो. द राइटर आल्सो सेड कि मेरी भी घोड़ों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं भी राइडिंग कर सकता हूँ. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट्स होप सो, गेट डाउन. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. Means the writer Aram said he took a promise from this Murad that he would allow him to ride on the back of the horse alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run. Wazir was the name of the horse. The horse stood on its hind legs. Hind legs means पीछे वाले legs. You can see this hind legs, इनको hind legs कहते हैं. Snorted means तेज आवाज में सांस लेना, उसको कहते हैं snorted. And burst into a fury of speed. Fury of speed means fast speed में अचानक से हवा के अंदर उसने जंप किया. That was the loveliest thing I had ever seen. तो इस पूरे ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को ऐसे वर्ड्स में एक्सप्रेस किया गया है. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. Why was he dripping wet? पानी से मतलब वो पसीने से लथपथ था, इसलिए गीला, मतलब उसका जो है पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था. Because the sun was coming up, क्योंकि सूरज अब ऊपर आ रहा था. इट मीन्स टू से इट वाज द टाइम टू हाइड द हॉर्स. अब घोड़े को छुपाने का टाइम आ गया था. बिकॉज इफ एनीबडी सा देम, अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो इट वुड बी अ ट्रबल फॉर देम, तो ये उनके लिए ट्रबल हो जाएगी. नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड. माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. राइड, ही सेड. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. He just jumped on the back of the horse. और 1 मिनट के लिए उसे बहुत डर लगा. घोड़ा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला. बिकॉज ही वॉज अलोन, क्योंकि वो अकेला उसके ऊपर राइडिंग कर रहा था, इसलिए उसको बहुत डर लगा. द हॉर्स डिड नॉट मूव. घोड़ा हिला भी नहीं अपनी जगह से.
because he did not know how to ride, क्योंकि वो जानता ही था राइड कैसे करते हैं. Kick into his muscles, my cousin Murad said. Then Murad instructed him कि इसकी मसल्स में किक करो. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in this world is up and about. इससे पहले कि सारे लोग जग जाएं और सारे लोग हमें देख लें, we have to take him back. I kicked into the muscle of the horse. Once again it reared and snorted. एक बार फिर ये पीछे की तरफ गया, यानी हिंड लेग्स पर खड़ा हुआ, snorted और जोर से इसने तेज आवाज में सांस दी. Then it began to run. I did not know what to do because he did not know how to do riding. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian where it began to leap over vines. तो सीधा जहाँ फील्ड से और इरिगेशन डिचेस की तरफ दौड़ने के बजाय ये रोड की तरफ से विनियर्ड्स की तरफ निकल गया. विनियर्ड्स यानी जो अंगूरों के जो बाग होते हैं उनको विनियर्ड्स कहा जाता है, और वाइन्स के ऊपर इसने जंप करना शुरू कर दिया. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. और इसने लगभग 7 वाइन्स के ऊपर जंप किया गिरने से पहले. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. इसने मुझे गिरा दिया बिफोर आई फेल, यानी राइटर नीचे गिर गया, एरम नीचे गिर गया, एंड इट कंटिन्यूड रनिंग. My cousin Murad came running down the road. I'm not worried about you, he shouted. We have got to get to that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. Means he said to, when he saw that Aram had fallen, तो मुराद ने कहा कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं, मुझे तो उस घोड़े को ढूंढ के निकाला है. चलो तुम इस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ. एंड वी हैव टू फाइंड द हाउ वी हैव टू फाइंड द हॉर्स एनी वे. और अगर तुम उससे तुम्हारे को मिलता है तो बी वेरी जेंटल एंड काइंड, और बिल्कुल थोड़ा उसका ध्यान रख के उसे ले आना. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. It means within half an hour the horse was found out and it was brought back. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. हम ऐसा करते हैं, इसे ले जाते हैं और कहीं छुपा देते हैं कल सुबह तक. He did not sound worried. He did not sound worried का मतलब उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती. It means to say this was a matter of doubt because he already knew the place where to hide. इसका मतलब उसको उस जगह का नाम मालूम था, वो जगह पता थी जहाँ उसको घोड़े को छिपाया जा सकता था. I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. Suddenly a doubt prevailed into the mind of the writer. राइटर के दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ये कितने दिन से घोड़े को छिपा रहा है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early mornings ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. इसका मतलब the writer realized that this was not the first day of the horse riding. While this Murad was doing the horse riding for a long time, and on that morning he had only come there out of sympathy to allow him also to ride. Longed to ride. Long का मतलब होता है having a strong desire. उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी राइड करने की. एंड एरम न्यू दैट मुराद न्यू दैट दैट्स व्हाई ही हैड कम. इसलिए वो उसके घर पर आया था, एरम के घर पे उसे इनवाइट करने के लिए. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स? ही सेड. एनीहाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? अगेन द राइटर इज स्टक ऑन दैट क्वेश्चन कि तुमने ये राइडिंग कब शुरू की थी. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड. आज सुबह सुबह ही शुरू की है, ही सेड. उसने कहा. इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड. बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से. देन ही एक्सेप्टेड दैट ही वाज टेलिंग ए लाई. तब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर कोई इनको ढूंढ निकालता है तो तुम्हें कहना यही है कि आज सुबह सुबह ही हमने घोड़ा हमें मिला है और हमने आज ही इसकी राइडिंग शुरू की. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazin. तो वो घोड़े को कहाँ लेके गया? एक बार्न में. बार्न कहते हैं फार्म हाउस टाइप का जगह होती है जहाँ ग्रेन स्टोर किया जाता है, अनाज स्टोर किया जाता है. तो डेजर्टेड विनियर्ड, एक ये डेजर्टेड का मतलब होता है पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ विनियर्ड था. तो वहाँ जहाँ बार्न था, बार्न का मतलब एक स्ट्रक्चर जहाँ ग्रेन स्टोर किया जाता है, जो किसी फैटवेजिन नाम के किसान की थी. वहाँ जाकर उस घोड़े को छुपा दिया. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा. अल्फाल्फा कहते हैं ड्राई ग्रास को, सूखी घास को कहते हैं. उसके अंदर उसको छिपा दिया.
We began walking home. हम वापस घर जाने लगे. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first he wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. Again, he had a boasting nature. यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो मुराद जो है इसका नेचर बहुत बोस्टिंग नेचर है. बोस्टिंग का मतलब डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना. कि वो बता रहा है कि देखो घोड़ों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है. पहले घोड़ा बहुत वाइल्ड था, लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है. घोड़े मुझे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स. द राइटर आल्सो पुट ए क्वेश्चन कि काश मेरे पास भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती कि घोड़े के साथ में अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाती. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. उस घर गया और घर जाकर अच्छा सा नाश्ता वास्ता किया. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Old country means old village, old days. Then another visitor arrived. मीन्स उस दिन घर पर दो विजिटर आए. एक तो अंकल खोसरो पहले से वहीं पे थे. फिर दूसरा विजिटर आया जिसका नाम था जॉन बायरो. वो एक असाइरियन था. असाइरियन, ये असाइरिया जो है पास में ही, आर्मेनिया के पास में ही एक दूसरी लोकेलिटी है. वहाँ से ये जॉन बायरो नाम का पर्सन आया था. ही इज़ आउट ऑफ लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. क्योंकि वो बॉर्डर पर रहा करता था, आर्मेनिया और असीरिया की बॉर्डर पर रहा करता था, इसलिए वो भी आर्मेनियन बोलना सीख गया था. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, it is still gone. I cannot understand it. Then he complained, or he expressed his grief by saying that his white horse is missing. So whose white horse is missing? The white horse of John Byro is missing, and he is expressing his grief over that. He is expressing his sadness over that. Now Uncle Khosrow, he became very irritated. वो बहुत इरिटेट हो गया, चिल्लाने लगे. इट्स नो हार्म. व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स? पे नो अटेंशन टू इट. वो वापस अपना पुराना राग अलापने लग गए जो उनके स्टैंडर्ड सेंटेंस थे. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, टू से जॉन बायरो. जॉन बायरो ने कहा कि तुम सिटी में रहने वाले लोगों के लिए ऑल राइट हो सकता है. बट व्हाट ऑफ माई सरी? सरी कहते हैं घोड़ा गाड़ी को. जो घोड़े के पीछे लगने वाली गाड़ी होती है उसको सरी कहा जाता है. व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड. आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड. जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील से दूर से यहाँ आया हूँ. यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड. तो क्या हो गया, तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम चल के आ गए. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड. द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड. आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड. Pay no attention to it. It is no harm. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. उठा वो कौन, ये यहाँ पर जो अंकल खोसरो, और घर के बाहर चला गया, स्क्रीन डोर को जोर से धमाके के साथ में बंद करता हुआ. क्योंकि जॉन बायरो तो इस तरह का व्यक्ति था नहीं, इसलिए डेफिनेटली इसने अंकल खोसरो नहीं किया था, क्योंकि ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. माई मदर एक्सप्लेन्ड, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट. नहीं, उसका दिल बहुत अच्छा है. इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन. इतना बड़ा आदमी, उसे घर की याद आती है, लाइक दैट. द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस. ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री. पीच ट्री किस तरह का ट्री होता है? इसको हिंदी में आड़ू बोलते हैं. ये पीच ट्री देखिए आप, ये पीच ट्री होते हैं इस तरह के. उसी पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था. और ये विनियर्ड्स होते हैं. ये देखो आप, अंगूरों के बाग हैं, बड़े बड़े अंगूर लगे हुए हैं यहाँ पे. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin. Robin is the kind of a bird. एक bird का नाम है which could not fly. उसके wings को जो है repair कर रहा था. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer John Byro, I said, he visited our house. He wants his horse. Robin भी मैं आपको दिखा देता हूँ. What kind of bird is this? Look at this one. This is a kind of bird, robin. The farmer John Byro, I said, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. Farmer John Byro, उसने घर पर आकर बताया है कि उसका घोड़ा गायब है, सफ़ेद रंग का घोड़ा गायब है. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इसे वापस नहीं दोगे जब तक कि मैं राइडिंग ना सीख जाऊँ.
अब वो उसे ये नहीं बताने आया है कि तुम्हें घोड़ा वापस देना है, बल्कि उसे ये बताना है कि तुम्हें घोड़ा छुपा कर रखना, अभी मुझे भी सीखना है। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, ठीक है हम 1 साल तक रखेंगे, मैंने कहा। माई कजिन मुराद लीव्ड टू हिज फीट। व्हाट, ही रोड, आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द Gharoglinian family to steal? The horse must go back to its owner. When? I said. In 6 months at the latest, he said. So both of them agreed to keep that particular horse, white horse, at least for 1 year. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. रोज का ये काम हो गया। घोड़े को जहाँ छिपी हुई जगह थी वहाँ से लेकर आते, फिर राइडिंग करते, फिर वो राइड करता, फिर वो गिर जाता, फिर वो भाग जाता, इस तरह से चलता ही रहता। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद। धीरे धीरे उसकी उम्मीद थी कि वो भी मुराद की तरह ही राइडिंग सीख जाएगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवेजिन्स डेजर्टेड विनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक सुबह व्हाट हैपेंड व्हेन दे वर गोइंग टू हाइड दैट पर्टिकुलर हॉर्स, सो इन बिटवीन द वे दे केम अक्रॉस जॉन बायरो। जॉन बायरो के संपर्क में आ गए वो रास्ते में। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो, माई कजिन मुराद सेड। आई हैव ए वे विद फार्मर्स। मेरी फार्मर्स के साथ में एक अलग प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले उसके घोड़ों के साथ में अंडरस्टैंडिंग थी, अब फार्मर्स के साथ में भी अंडरस्टैंडिंग। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। फार्मर ने जैसे ही जॉन बायरो ने घोड़ा देखा, उस घोड़े को पहचान गया, इसलिए ध्यान से देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। उसने उसका नाम बताया, माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स। I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा ही है जो काफ़ी समय पहले चुरा लिया गया था। क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ? Of course, मुराद ने कहा। The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I did not know your parents. मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये मेरा ही घोड़ा, बिल्कुल वैसे के वैसे दांत है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। तुम्हारे जो फैमिली की जो ऑनेस्टी है वो मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी ये मेरे जैसा ही घोड़ा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं अपनी आंखों पर बिलीव करूँगा, अपने हार्ट पर बिलीव नहीं करूँगा। यानी हार्ट तो कहता है कि नहीं नहीं ये तो ऑनेस्ट लोग हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन आइज कहती हैं कि ये घोड़ा मेरा है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। इन दैट वे ही गेव ए वार्निंग टू दैम। उसने उनको एक अप्रत्यक्ष रूप से एक चेतावनी दी। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनियर्ड। और अगली सुबह उन्होंने क्या किया, घोड़े को उठाया, जॉन बायरो के विनियर्ड में ले गए, उसे वहाँ बाण में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। हमारे पीछे कुछ डॉग्स भी थे, बट दे वर नॉट मेकिंग ए साउंड, दे वर नॉट बार्किंग। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने सोचा ये डॉग्स हम पर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड। वो किसी और पर भौंक सकते हैं पर हम पे नहीं। आई हैव ए वे विद डॉग्स। मेरी डॉग्स के साथ में भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, यानी पहले हॉर्सेस के साथ में अंडरस्टैंडिंग थी, फिर उसके बाद में फार्मर्स के साथ में अंडरस्टैंडिंग सामने आई। यानी ही इज़ ए मैन ऑफ बोस्टिंग। डींगे हाँकने का बहुत शौक है उसे। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, patted it, and then we went away. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. यानी पहले से घोड़ा काफ़ी अच्छा हो गया है, बेटर टेम्पर टू, इसका टेम्पर भी अच्छा हो गया, यानी अब थोड़ी थोड़ी बात करिए गुस्सा नहीं होता। आई थैंक गॉड माई अंकल खोसरो हु वॉज इन द पार्लर। और अंकल खोसरो जो कि पार्लर में थे अंदर, बिकेम इरिटेटेड, वो इरिटेट हो गए, चिल्लाने लगे, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड। तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, देयर इज नो हार्म, पे नो अटेंशन। So this was the story, The Summer of the Beautiful White Horse. If you have any line which is not understood by you, please drop a comment in the comment box. Thank you.